آپ تسبیح خانے کے ساتھ اپنی نسبتیں لگا کے کبھی پچھتائیں گے نہیں سوائے میرے. میں پچھتاؤں گا. آپ تسبیح خانے کے ساتھ قدم بڑھا کے پچھتائیں گے نہیں سوائے میرے. کبھی نہیں پچھتائیں کہ تسبیح خانے سے ہماری نسبتیں لگی تھیں، پتہ نہیں کن راہوں کا راہی بنا دیا. ہم تو سچ جوڑنے نکلے تھے، چلو خود سچا نہیں تھا، راہیں تو سچی دے دیتا. نہ خود سچا نہ راہیں سچے. میری آنکھ بند تھی جب تلک تو نظر میں نور جمال تھا، کھلی آنکھ تو نہ خبر رہی کہ وہ خواب تھا کہ خیال تھا. جب موت کی آنکھ کھلے گی، زندگی کی آنکھ بند ہوگی، پھر اصل کا پتہ چلے گا کہ سچ کیا تھا اور جھوٹ کیا تھا. کہا کہ دھول ہٹے گی تو پتہ چلے گا گھوڑ سوار ہے یا خچر سوار ہے. دھول تو ہٹے پہلے. یاد رکھیے گا، آپ کبھی نہیں پچھتائیں. فرمائے جس بندے کے ہاتھ میں 4 بندے ہاتھ دیں، سنیں اپنے ایمان کا بھروسہ کریں، قیامت کے دن اس کے ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے ہوں گے اور وہ ایک ایک بندے کے سوال کا جواب دے گا اور پچھتائے گا، کاش میں یہ کام نہ کرتا، میں کسی کو بیعت نہ کرتا، میں کسی کے ایمان کی گارنٹی نہ لیتا. لوگ گلاس بھی باندھ دیتے ہیں کہ کوئی گلاس نہ لے جائے، اس بچے کو روکو. گلاس بھی باندھ دیتے ہیں اور لوگ جوتے کا بھی خیال رکھتے ہیں. آپ نے تو ایمان کا سودا کر دیا، بس اخیر ہو گئی ہے. یہ مومن کا ایمان ہوتا ہے جس ایمان کی خاطر سر تن سے جدا. مومن کا ایمان ہی ہوتا ہے جس ایمان کی خاطر جسم تیروں سے چھلنی. یہ مومن کا ایمان ہی ہوتا ہے جس کے لیے پیٹ پہ پتھر. یہ مومن کا ایمان ہی ہوتا ہے جس کے لیے بچے قربان. یہ مومن کا ایمان ہی ہوتا ہے جس سے گھر بار گھر بدر اور ہجرت. یہ مومن کا ایمان ہی ہوتا ہے کہ جس سے پتھروں کے اوپر گھسیٹا، انگاروں پہ گھسیٹا، کوڑے مارے. اور ایمان اندر کہہ رہا ہے احد احد. یہ ایمان ہی تو ہے. حضرت سمیہ اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون، ایک پاؤں سے ایک اونٹ باندھا، دوسرے پاؤں سے دوسرا اونٹ باندھا، پھر ان کو دوڑایا اور 2 ٹکڑے کر دیا ابو جہل نے، اور ایمان اندر ہے. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین وجعلنا من الصالحین. ایمان ہی تو ہے. اور جو ایمان کے سودے کر دے، میں نے فلاں حضرت کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، بیعت بے سے ہے، اور بے کے معنی بک جانا. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو انہیں خرید کر انمول کر دیا. ہاں ایمان. آپ پچھتاؤ گے نہیں، پچھتانا مجھے پڑے گا. اس لیے بڑی بڑی ہستیوں نے ایک بات کہی، سنو غور سے. جب اللہ مجھ سے پوچھے گا کیا لایا، اپنے ایک خاص مرید کے بارے میں فرماتے تو میں اس کو آگے کر دوں گا. یا اللہ میری ساری عمر کا کھٹیا وٹیا، میری ساری عمر کی کمائی یہ بندہ ہے، اللہ اس کو دیکھے گا، رب کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، اللہ میرے اس مرید کی وجہ سے میری بخشش کر دے گا. بابا فرید فرماتے تھے میں نظام الدین اولیاء کو سامنے رکھوں گا، اور صالحین اولیاء کتنی ہستیاں ہیں، انہیں پتہ تھا پیچھے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے اور پوچھا جائے گا. ہاں پوچھا جائے کیا بنا تو سنا، کیا بنا تو سنا. اس نے تو تیرے پر ایمان کا بھروسہ کیا تھا، اس نے تو جوتی پہ بھروسہ کسی پہ نہیں کیا تھا. اس نے گلاس تھا تو اس کو زنجیر سے باندھا تھا، اس نے اپنی گاڑی کو لاک لگایا تھا، اس نے اپنی دنیا کی ادنا سی ادنا چیز بھی حفاظت سے رکھی تھی، ڈھانک کے تالے میں رکھی تھی. اس نے اپنے بیعت کے نام پہ اپنے جسم کا سودا نہیں کیا، اپنے ایمان کا سودا کیا. آپ تو کبھی نہیں پچھتائیں گے. آپ نے تو اپنا سب کچھ دے کے اخلاص کی بنیاد پہ اللہ پہ بھروسہ کر دیا. مولا اب یہ فقیر جانے اس کا کام جانے، ہم نے تو اس پہ بھروسہ کیا
इसलिए कहते हैं मुर्शिद से मोहब्बत मत करो, इश्क करो। इश्क अंधा होता है, इश्क दीवाना होता है, इश्क गूंगा होता है, इश्क ना किसी की सुनता है ना देखता है, चाहे कितनी दुनिया की इल्जामात, कहानियां, हवाएं, वबाएं उठें, चलें, बढ़ें, इश्क अंधा होता है, दीवाना होता है। इश्क दीवाना होता है। हाँ, शबे जुमा में आप बैठे हैं, आज आपने आयते करीमा पढ़ी है, मैं किस मजमून के कहां निकल गया। बात तो शबे जुमा पे चली थी, बात तो आज आयत करीमा पे चली थी, आयत करीमा। और बात जो चली थी नए चांद की, कि नया चांद क्या है, नया चांद क्यों होता है, और नए चांद की तासीर क्या है, नए चांद की ताकत क्या है। या उनसे पूछें जिन्होंने नए चांद को देखा, नए चांद को देखा, हां नए चांद को देखा, फिर नए चांद की तासीर देखी, उसमें तब्दीलियां आती हैं हैरत अंगेज, कायनात आलम में तब्दीलियां आती हैं। एक और मखलूक है, सुने गौर से, एक इंसान है, हमें पता है, फरिश्ते सुना है, जिन्नात सुना है, और सुना भी है, हमें यकीन में है। क्यों? अल्लाह उसके हबीब ने फरमा दी। सुना है, अल्लाह उसके हबीब ने फरमा दी। एक और मखलूक ऐसी है, अल्लाह के इल्म में है, अल्लाह के आलम में है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक और मखलूक ऐसी है जो मेरे अल्लाह के इल्म में है। जब चांद शुरू होता है और 14वीं का चांद होता है, वो शहरों में, वो गलियों में, वो बाजारों में निकलते हैं, वो जंगलों वीरानों में निकलते हैं, वो समुद्रों के अंदर रहते हैं। एक उस आंख ने देखा, एक उस आंख ने देखा, जिस आंख ने, मैं किसी की देखी आंख से बयान कर रहा हूं, जिस आंख ने कुदरत के जलवे देखे और अपने सीने के अंदर दफन कर दिए, और मौत तक वो दफीने दफन रहेंगे, कि लोग अंदाजे लगाते रहें। क्यों? कुन से दुनिया गरीब। मुसाफिर के बारे में अंदाजा होता है, मुसाफिर जा रहा है, कोई कहता है गरीब लगता है, कोई कहता है नहीं बीमार भी है, कोई कहता है उदास है, कोई कहता है किसी की तलाश कर रहा है, कोई कहता है नहीं नहीं मालदार है, कोई कहता है नहीं भगोड़ा है, गुलाम है। हर बंदा मुसाफिर के बारे में अंदाजे लगाता है। फकीर ऐसा हो जिसके बारे में दुनिया अंदाजे लगाती रहे, कोई कहे 1 नंबर है, कोई कहे 2 नंबर है, कोई कहे ईमानदार है, कोई कहे दुकानदार है। सुने गौर से, तवज्जो से सुने। एक समंदर से अल्लाह के इल्म में मुताबिक, इल्म में है, एक मखलूक निकलती है, वो गलियों में, बाजारों में, समंदरों के अलावा वीरानों में, हर जगह, पहाड़ों में फैल जाती है, फैल जाती है। और नए चांद से लेकर 14वीं के चांद तक, नए चांद से लेकर 14वीं के चांद तक, जो बंदा जो वज़ाइफ करता है, जो तस्बीहां करता है, जो अमल करता है, कोई खैर का काम करता है, कोई बाबरकत निजाम, कोई चीज ऐसी करता है, नए चांद से 14वीं के चांद तक, उन सब की नेकियों को समेटती है। और समेटने के बाद अगला लफ्ज मेरी तरफ से है, एक बैंक है उनके पास, उस बैंक में रखती है, अल्लाह के इल्म में है, उसमें रखती है। फिर उस बैंक में उसको मुनाफा मिलना शुरू हो जाता है, उसका मुनाफा जायज है, और मिलना शुरू होता है, और बढ़ना शुरू होता है, और बढ़ते बढ़ते बढ़ते, पर मैं जब वो इस दुनिया से रुखसत होता है, आखिरी वक्त में वो तराजू का तोल, वो बैंक का सारा निजाम लेके उसकी कब्र में उसके साथ रख दिया जाता है। और जब बंदा वहशत के आलम में नकीरैन, मुनकर नकीन को की आवाज पे उठता है, तो वहशत की हालत में परेशान होता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को एक साहबी फरमाते, मैं जंगल में जा रहा था, मैंने एक आवाज सुनी, आवाज में आया क्या क़यामत आ गई है? कहा नहीं आई। कहा तो कौन है? क्या मैं नूह अलैहिस्सलाम का वो बेटा हूं जो ईमान नहीं लाया था। तो कहा मुझे अपनी शक्ल दिखा, लंबा वाक़या है। कहा उसने शक्ल दिखाया, लंबे कद का आदमी था, उसके बाल सफेद थे। कहा कि तू तो मरा था, सुना जवान था, और तेरे बाल सफेद। कहा अभी अभी हुए हैं, क़यामत के खौफ से कि ए क़यामत आ गई, अभी अभी हुए, क़यामत आ गई।
ہمارے ایک ملک کے بادشاہ تھے، تو ان کے ایک دوست تھے، وہ شکار کھیلتے تھے. وہ کہتے ہیں میں بات بالوں پہ آئی تو دوسرا واقعہ یاد آیا. وہ کہتے ہیں کہ میں شیر کا شکار کھیل رہا تھا، گھات لگا کے بیٹھا ہوا تھا. اچانک شیر گھات لگا کے آیا، میں نے گھات لگائی ہوئی، شیر نے گھات لگائی اور میرے سامنے آ گئے. اور مجھے کہا کہ ایسا خوف ہوا کہ جب میں شیر سے بچ گیا، میں نے گولی چلا دی، شیر کی ٹانگ کو لگی، وہ بھاگ گیا لنگڑاتا ہوا. پر مجھے ایسا خوف ہوا کہ میں نے محسوس کیا میرے جسم میں کوئی تبدیلی آئی ہے. جب میں آبادی میں گیا تو میرے جسم کے سارے بال سفید ہو گئے تھے. مجھے دیکھتے تھے، ہاتھوں کے، جسم کے، سینے کے، بازو کے، سر کے، سب بھویں سب سفید ہو گئے تھے. کہنے لگے یہ کیا ہوا؟ نہیں کیا ہوا، میں کچھ نہیں ہوا. کہا تیرے جسم کے بال سفید ہیں. کہا میں نے جب خود احساس کیا، ادراک کیا، تو جسم کا میرا رواں رواں سفید تھا. نوح علیہ السلام کے بیٹے نے خوف سے کہا کیا قیامت آ گئی؟ کہا نہیں آئی. تو کہا تیرے بال سفید کیوں؟ کہا مجھے ایک دم ہوا کہ شاید قیامت آ گئی. کیا بات کر رہا تھا؟ منکر نکیر آئیں گے قبر میں اور اس سے آ کے سوال و جواب کریں گے، اور اس کے پاس ایک پہاڑ کھڑا کر دیا جائے گا. پوچھا یہ پہاڑ کون ہے؟ کہا یہ نوچندی سے لے کر چاند تک تو اعمال کرتا تھا اور اہتمام کرتا تھا، یہ وہ عمل ہے. آج یہ عمل مشکل کشا بن جائیں گے، حاجت روا بن جائیں گے، تیرا ساتھ دیں گے، تیری قبر کو وسیع روشن کریں. اعمال سے مراد خود اللہ ہے، یاد رکھیے گا، خود اللہ ہے. یہ عمل مشکل کشا بن جائیں گے، حاجت روا بن جائیں گے، تیرا ساتھ دیں گے، اور تیری قبر کا ساتھی، تیری وحشت کا ساتھی بنیں گے. لحد میں جو مشکل کشا آ گیا، مجھے مرنے کا بھی مزہ آ گیا. اور وہ اعمال دائیں بائیں سرہانے ہوں گے، سرہانے جو بیٹھے تھے میری سرکار. نکیرین کو بھی حیا آ گیا. محمد 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 جو میں کہتا رہا صلی اللہ علیہ وسلم. محمد محمد جو کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. اس نے جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی. یہ نوچندی کے عمل، یہ جو آج زندگی میں پتہ نہیں چلتا آپ تسبیح خانے بیٹھے ہیں یا دنیا کے جس کونے میں بیٹھ کے تسبیح خانے سے آپ کی نسبت ہے. خوش قسمت ہیں دنیا کے جس کونے میں بیٹھے ہیں، ان کی نسبتیں تسبیح خانے کے ساتھ ہیں. یہ جو نوچندی کے عمل ہے، نوچندی کے عمل ہے، یہ آپ کا جب وزن تو لیں گے نا، اور جب پہاڑ بنیں گے، حیرت کا جہان ہوگا، حیرت کا آسمان ہوگا، اور حیرت کا سمندر ہوگا، حیرت کا سمندر ہوگا. یہ نوچندی جو آج آپ آئے بیٹھے ہیں، خوش قسمت نصیبوں والے، خوش قسمت نصیبوں والے جو آج آپ آئے بیٹھے ہیں. یہ کوئی ایسی نہیں ہے، ایسی نہیں ہے، ایسی نہیں ہے. یہ جو آپ آئے بیٹھے ہیں، اس کے اندر طاقت ہے، طاقت ہے، اور اس کے اندر قوت ہے. یاد رکھیے گا، پتہ چلے گا. اور پھر آج آپ نے آیت کریمہ پڑھی ہے، 3 جگہ آیت کریمہ، پوری دنیا میں آیت کریمہ جہاں پڑھیں، جس وقت پڑھیں، جس لمحہ پڑھیں، جس لہجہ پڑھیں، لیکن 3 جگہ آیت کریمہ ایسی ہے جس کی طاقت اور قوت حیرت انگیز ہے. اس کی مثال دیتا ہوں. آپ چوتھا کلمہ گھر پہ پڑھیں 10 نیکیاں، اور وہی چوتھا کلمہ بازار میں پڑھیں 10 لاکھ نیکی. کیوں؟ وہاں سارا نظام مصروفیت غفلت کا ہے. آپ نے غفلت کے نظام میں بیٹھ کے چوتھا کلمہ پڑھ لیا. جگہ کے بدلنے سے، سنے گا، غور سے سنیے گا، حال کے بدلنے سے، احوال کے بدلنے سے نیکیاں بڑھ جاتی ہیں.
यही कलमा यहां पढ़े 1 है, यही मस्जिद नबवी में 50,000 है, यही बैतुल्लाह में 1 लाख है। हाल और जगह के बदलने से निजाम बदल जाता है। हाँ, निजाम बदल जाता है। आपकी जो वहां नेकियां होंगी, ये जो आप नेकियां कर रहे और करेंगे, और ये जो आयत करीमा बता रहा हूं 3 जगहों पे आयत करीमा, एक शबे जुमा में, एक मजमे के साथ, वो जहां भी हो, जिस वक्त भी हो, जिस जगह भी हो, एक शबे जुमा में, एक मजमे के साथ, और तीसरी इसमें एक कबूलियत की चीज है शबे जुमा में और मजमे के साथ, और तीसरा बावजू। मेरे ख्याल में आज तीनों चीजें मौजूद हैं हमारी आज की आयत करीमा। आप कितने खुशकिस्मत हैं, आपको मुबारक। हाँ, तकूनु लना ईदन, तो मोमनो तुम्हारी तो ईद हो गई। 3 जगह आयत करीमा, सबसे पहले शबे जुमा में पढ़ें, दूसरा मजमे के साथ, आज मजमा है, और तीसरा बावजू पढ़ें। अमल बेवजू भी उसकी बारगाह में कबूल है, बाकी अमाल के अलावा। जरूरी नहीं कि नमाज भी हम बेवजू, अज़कार की बात कर रहा हूं, जिक्र की बात कर रहा हूं। इसलिए तवाफ बावजू होता है, अमल तो बेवजू भी कबूल है, कोई अज़कार की बात कर रहा हूं, लेकिन बावजू अमल करना, बावजू अमल करना, और आयत करीमा मिल के पढ़ना, और आयत करीमा शब जुमा में पढ़ना। अगर आज आपको इससे मेरी बात से पहले पता होता, अगर आज आपको मेरी बात से पहले पता होता, अगर आज आपको मेरी बात से पहले पता होता, आप गुठलियां छीन छीन के पढ़ते, गुठलियां ना मिलती उंगलियों पे पढ़ते। अगर पता होता कि शब जुमा भी है, मजमा भी है, और बावजू भी हैं, आप पता नहीं आपकी हालत क्या होती, आप किस कैफियत और किस हालत के साथ पढ़ते हैं। आप सुने आयत करीमा। मुझे किसी ने बताया कि एक ईसाई है, तो वो लोगों को दम करता है और उससे लोगों को बड़ा फायदा होता है। एक बंदा बैठा था, उसने कहा बिल्कुल ठीक है, मेरा पड़ोसी है। तो मैंने कहा उससे वजीफा तो ले, अमल तो ले, कौन सा पढ़ता है? यहां रेंजर हेडक्वार्टर के साथ जोड़े पुल है लाहौर में। ये बात कर रहा हूं मैं 1998-99 के, गालिबन 98 के, 98 के। उससे कहीं वो कोई आगे है, कोई मुर्गी खाना, पता नहीं क्या है, वहां कोई बता रहे थे, मैंने देखा नहीं, 98 की बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा जो ईसाई है वो लोगों को दम करता है, पानी ले जाते हैं, मरीज ले जाते हैं, जो दम करता है और बंदे ठीक हो जाते हैं। जाग रहे। अच्छा, ये ऐसे हटा लें अपने आप को, फिर जाग जाएंगे। मेरे साथ एक साहब बैठे हुए थे, तो वो कहने लगे कि मैं जानता हूं वो ईसाई है, मैं जानता। मैंने कहा उससे कोई वजीफा तस्बीह ले लें, है क्या उसके पास? उसने कहा मैं ले लूंगा, मेरा उससे ताल्लुक है। हफ्ते के बाद जमा होते थे हम ऐसे दर्स के लिए, उस वक्त मंगल के दिन जमा होते थे। तो मैंने उससे पूछा, तो उसने कहा मैं पूछूंगा। फिर उसने आके बताया, उसने कहा जी वो ईसाई है, वो सिर्फ आयत करीमा पढ़ता। कहा कि उसके मुंह से मैंने आयत करीमा सुनी। एक और देख, मुंह में 70 शिफाएं रख रहा हूं। एक पठान था, उसने बनाया चिड़ियाघर। उसने कहा भाई तुम्हारा टिकट होगा 100 रुपए का। उसने कहा भाई 100 रुपए महंगा। उसने कहा 90 पे काम करेगा। उसने कहा 90 नहीं है। उसने कहा 70 रुपए लेगा। उन्होंने कहा नहीं। उसने कहा मुफ्त लेगा। दुनिया भर गई, गेट बंद करके शेर को छोड़ दिया। अब जो बाहर निकलेगा 500 रुपए।
भाई 90 रुपए, 5 रुपए, 60 रुपए। उसने कहा मुफ्त में है, चिड़िया घर आ जाओ। गेट बंद करके शेर का दरवाजा खोल दिया। उसने कहा अब जो गेट के पार निकलेगा 500 रुपए लेगा। उसने कहा आयत करीमा पढ़ता है, आयत करीमा पढ़ता है, और आयत करीमा पढ़ के दम करता है। वो कहता है मुझे दुनिया का कोई और कायनात का निजाम दे दो, जो मेरा यकीन आयत करीमा पे है वो किसी पे नहीं है। यकीन। सूरतुल मोमिनून के बारे में मेरे आका ने फरमाया, कसम है उस जात की किस कब्जे में मोहम्मद की जान है, अगर कोई इसे यकीन से पढ़ ले तो पहाड़ भी अपनी जगह से हट जाए। यकीन, यकीन, यकीन। अंदरून सिंध में मुझे एक हिंदू काले जादूगर ने बताया, एक सफर में, आप इन मुसलमानों को नहीं समझाते, ये मेरे पास काले पीले इल्म के लिए आते हैं, जबकि मैं खुद अगर परेशान, बीमार, दुखी, मुश्किलात में आता हूं तो मैं आयत करीमा पढ़ता हूं। और मैंने कहा कौन सी आयत करीमा? मैंने जानबूझ के पूछा, मैंने कहा इससे सुनो, और उसने मुझे साफ जेर जबर के साथ लाजवाब आयत करीमा सुनाई। यकीन, यकीन, और ऐसा यकीन और ऐसा कामिल यकीन उस हिंदू को यकीन है, उस ईसाई को यकीन है, क्रिश्चियन को। क्या यह मुसलमान को यकीन है? बस एक सवाल है, मुसलमान को यकीन है? बड़ी जिंदगी में पहली दफा वो जोड़े पुल की याद आई मुझे। हमारे एक मुखलिस से सुल्तान अहमद साहब, उन्होंने कहा मैं पूछूंगा, उन्होंने मुझे बताया। आज आपने आयत करीमा पढ़ी है, आप पछता रहे हैं, हम बड़ी तवज्जो से पढ़ लेते। क्यों? आज की आयत करीमा में 3 शर्तें तो ताकतवर हैं, शब जुमा की शर्त, मजमे की शर्त और खुद आयत करीमा की शर्त। एक शब जुमा में पढ़ी, एक मजमे में पढ़ी, और तीसरी बावजू पढ़ी। ये 3 शर्तें हैं, बहुत ताकतवर तरीन 3 शर्तें, और जो इन 3 शर्तों को कभी ज़ाय नहीं करेगा, रब उसकी 11 दफा पढ़ने से दुआएं कबूल करेगा। 11 दफा पढ़ने से दुआएं कबूल करेगा। 11 दफा पढ़ने से दुआएं कबूल, 11 दफा पढ़ने से दुआएं कबूल करेगा। हाँ, 11 दफा पढ़ने से दुआएं कबूल करेगा। हमारी रूहानियत की किताबों में एक बात आई है कि कुछ लोग जमा होके अगर 1.25 लाख दफा आयत करीमा पढ़ लें तो दुनिया की कोई भी मुसीबत है, हत्ता के तख्तेदार पे बंदे के गले में फंदा डाल दिया है। हाँ, बंदे के गले में फंदा डाल दिया है, तख्तेदार में बंदे के गले में फंदा डाल दिया है, वो भी बच जाएगा अगर कुछ लोग जमा होके आयत करीमा पढ़ लें। हाँ, कुछ लोग आयत करीमा पढ़ लें, वो भी बच जाएगा। कुछ लोग जमा होके पढ़ लें, और कुछ लोग में जमा में 5, 10, 20 जितने भी हो जाएं, और जहां इतना बड़ा मजमा जमा होके पढ़ ले। और फिर एक और बात सुने, एक बड़ी काम की बात बताऊं। हजरत शाह गौस गवालियारी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह के एक बहुत बड़े वली गुजरे हैं, वो फरमाते हैं कि कुछ मजमा जमा होके, कहा मेरे तजर्बात में ये आया है, और एक वाकया सुनाया। अब वो वाकया सुने। गवालियार का किला आपके शाही किले की तरह है, वहां कैदियों को बंद किया जाता था। गवालियार के किले में हजरत मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह को अकबर ने गवालियार के किले में बंद किया था, और जहांगीर को फिर ख्वाब में एक बिशारत हुई। सुनने की बात है, मैंने एक दुर्वेश से ये बात सुनी है, एक दुर्वेश से बरह रास्त सुनी है, और मैं कि बिशारत हुई तूने अल्लाह के वली को बंद किया हुआ है। तो वो रात को नंगे पांव जेल में गया और खुद रिहा किया और माफी मांगी, और हजरत ने फरमाया माफी उस बात पे होगी जब तू सारी गैर शरई रसूमात खत्म करे। कहा करूंगा, और कहा कि फिर जहांगीर सारी उम्र अपने मुर्शिद की मंशा पे चलता रहा,
पूछ पूछ के मंशा पे चलता रहा, मंशा पे चलता रहा, मंशा पे चलता रहा। झावरियां कहां है? सरगोदा के साथ। एक दुर्वेश थे झावरियां के, वो बाबा जी फरमाते हैं मैं उनके साथ गया जहांगीर के मकबरे पे, उन्होंने मुराकबा किया, बहुत देर तक मुराकिब रहे और कहा वाह वाह अल्लाह ने माफ कर दिया। मैंने पूछा हजरत किस अमल से? कहा मुर्शिद से पूछ पूछ के, यानी मुर्शिद की मंशा पे चलता था, अल्लाह ने इस अमल की वजह से जहांगीर को माफ कर दिया। इस अमल की वजह से। अब शाह गौस गवालियारी की बात में चला था, शुक्र है भूला नहीं। मेरे सामने जो बैठा करे ना वो जरा चौकन्ने रहा करे, क्योंकि मैं तो एक पल में यूं फिसलता हूं, इधर निकल रहा हूं, जाए गली जाए लाई गली ओदन अलतोर चली। वो अल्लाह की तरफ से इल्म मिलता है, फिर जिस मौजू पे चलूं तो फिर वहीं चल पड़ता हूं। हजरत शाह गौस गवालियारी रहमतुल्लाह अलैह की एक बात बताऊं, एक अल्लाह के वली की बात बताऊं, सुनना जरा। पर मैं मेरे तजर्बात में है, और ये बात आज की जुमेरात में 100% मुनासिब है, ना मुनासिब नहीं, मुनासिब है, जिसे कहते हैं फिट है आज की ये बात। वो कैसे? पर मैं मेरे तजर्बात में है, अगर सुलहा की कोई जमात या नमाजी लोग आयत करीमा मिल के पढ़ लें और इखलास पढ़ लें, कुल्हुवल्लाह पढ़ लें और आयत करीमा पढ़ लें, फरमाया फंदे पे अगर हो बंदा और उसके गले में फंदा डाल दिया गया हो और अब बस सिर्फ एक छोटा सा ऐसे झटका हो और वह बंदा उसी वक्त गर्दन टूटे और मर जाए, पर मैं वो भी फंदे से उतर